Namaskar. A very warm welcome to all of you in this episode. And you might be seeing two of my guests sitting along with me. As promised last time, based on my video regarding the behavioral issues which the teachers and the parents face in today's time, I thought of having a discussion, an interaction with the experts in the field, because as parents and as teachers we may not at times be able to understand the reasons behind the issues which the children are facing, and because of that parents and teachers are facing. That is the reason I have requested two of my guests to be with me today. I would like you to get introduced to them. To my right, just right, is Ms. Memansha. She has been the counselor for the last 6-7 years and has been handling the cases and the issues of the children and the adults as well. And the same is the case with my other guest, Ms. Sonal Goswami, who is also responsible for taking care of the behavioral issues of the children particularly, and also counseling the adults. So very warm welcome to both of you, and I hope today's interaction would definitely give some ideas to our parents and teachers so that they are able to take care of the issues which are faced by our children. I would start with you, Ms. Sonal, that what are those issues which the children come with to you जब वो आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके पास काउंसलर के पास यूजुअली तभी डॉक्टर के पास काउंसलर के पास तभी यूजुअली लोग जाते हैं जब उनको कोई तकलीफ होती है या कोई इशू होता है. सो जब बच्चे आपके पास आते हैं तो व्हाट आर दोज इश्यूज, मेजर इश्यूज व्हिच दे शेयर विद यू दे आर सफरिंग? Yes, sir. Thank you, sir. This is a very concerning and alarming questions that you have put up. कि वो हमारे पास बहुत ही ऐसे इश्यूज लेके आते हैं जो हमको लगता है कि दे आर नॉट फेसिंग. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इज एकेडमिक प्रेशर. एकेडमिक प्रेशर मतलब हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड समटाइम्स सेल्फ क्रिएटेड. उनको लगता है कि हमारा फेलियर, वी कैन नॉट फेल इन सर्टेन थिंग्स. वो अपने आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो क्या. द फियर ऑफ डाउट कम्स फ्रॉम एकेडमिक प्रेशर. वो फेलियर को इंस्टेड ऑफ ट्राइंग वो फेलियर को ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो इस वजह से वो प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर वो अपने आप पर ले लेते हैं. एंड सेकंड, द कंसर्निंग इशू हैज़ कम बॉडी इमेज कंसर्न्स. बॉडी इमेज कंसर्न्स मतलब वो अपने आप को डिसलाइक कर रहे हैं, अपने अपीयरेंस को, वो कैसे दिखते हैं उसको वो अपने आप को ही पसंद नहीं कर पा रहे हैं. इससे ये भी इशू है क्या? yes. मतलब बच्चे को अपने ऊपर ही मतलब कि मेरे आई एम नॉट टॉल, आई एम नॉट, आई एम वेरी शॉर्ट, और आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, 43% children are facing this issue. So out of 10, 4 to 5 students are facing this issue, and which is this number seems to be quite large, because in general I mean as parents and teachers we don't come across like ऐसा भी हो रहा होगा, ऐसा हमें कई बार नहीं लगता. Okay, thank you Sonal ma'am. Ms. Memansha, what would you like to share? What kind of issues the children come with to you? Children come with many issues like bullying, peer pressure, family conflicts and self-esteem issues. I would like to talk about how bullying and peer pressure. अच्छा, मुझे जब आप कह रहे हैं कि बुलिंग तो एक ऐसा हुआ कि बच्चों को कोई तंग कर रहा है, क्लासरूम में तंग कर रहा है या बस में तंग कर रहा है. मैंने पिछली बार एक एग्जांपल भी आपको वीडियो में दिया था किसी से वेब सीरीज़ का, और मुझे लगता है कि वो वेब सीरीज़ का कोई ऐसा नहीं कि कोई फिक्शन है वहाँ पर. आई थिंक दीज आर सम रियल इश्यूज, and as parents and teachers we don't come to know sometimes. और जब नहीं पता लगता तो थोड़े बच्चे तकलीफ में रहते हैं. तो शायद आपका बुलिंग से वही मतलब है. yes, बच्चों के बारे में. और जो आपने फैमिली कन्फ्लिक्ट की बात की, तो बच्चे वो भी शेयर करते हैं आकर के. सो देखिए, मतलब ये तो बड़ा ही सीरियस इशू है. मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा. तो बच्चों की आपने बात बताई कि दे कम विद द एकेडमिक प्रेशर, दे शेयर इट विद यू कि वी आर फीलिंग सो मच ऑफ अ प्रेशर, एंड दे शेयर विद यू कि आई एम नॉट गुड लुकिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आपसे जब बात करते हैं कि घर में तकलीफ है या घर में इस तरह की फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट है या इस तरह के इश्यूज है, या मैं मतलब मुझे बच्चे दूसरे तंग कर रहे हैं या कोई पड़ोस में तंग कर रहा है या ग्राउंड में कहीं जाते होंगे वहाँ कोई तंग कर रहा है,
तो सीरियस इश्यूज हैं जो कई बार इग्नोर हो जाते हैं हम पेरेंट्स से या टीचर से, क्योंकि टीचर्स को भी बहुत सारे काम करने जरूरत है. सो एज वी टॉक्ड अबाउट द टीचर, सो आई रिमेंबर दैट द टीचर्स मस्ट ऑल्सो बी कमिंग टू बोथ ऑफ यू with the issues which they are facing there in the classroom or otherwise related to the behavior of the children. तो वो किस तरह की बातें आपसे यूजुअली शेयर करते हैं? So first and foremost, the children don't listen to the teacher, disturbing the class. The attention span of the child has become so low या less, इतना कम हो गया है कि एक बच्चा कोई चीज़ करता है तो the entire class starts doing it. वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, they are not able to concentrate कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, and then this changes their behavior in the classroom, and the classroom studies is getting affected. So this is one major concern that the teacher comes up. लेकिन इसमें एक बात बताएं मुझे कि जब आपसे मैं सुन रहा हूँ तो एकदम डर सा लगने लगता है कि सारे बच्चे ऐसा करते हैं क्या? कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं? नहीं सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे एक दूसरे का बिहेवियर देख के सीख जाते हैं. तो अगर एक बच्चा कुछ कर रहा है तो उसको अगर रोका नहीं जाता है या वो रुक नहीं पाता तो दूसरे छोटे बच्चे होते हैं तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. And at that end the class is getting disturbed. So teacher faces this issue. आपके सामने किस तरह की बातें टीचर्स लेके आते हैं? The children are not interested in classes. Few of the children, they are not interested in classes. वो क्लास में बैठे होते हैं and they are preoccupied with something else. उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है. They are looking ways to get out of the class. They are taking whole round. वॉशरूम के लिए जाते हैं, 15-15 मिनट तक वापस नहीं आते हैं. So issues like this. Sometimes the information which a child shares with the teacher, and when the teacher calls the parent to confirm it or to ask how things are, they are different. So there's a little storytelling also by the children, and there's a little aggressive behavior also sometimes, which can be due to any different reason. So issues like this. Okay. So मतलब मैं देखा जाए तो कुछ बच्चों में इस तरह की बातें हैं कि वो एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, थोड़े हाइपर एक्टिव वो बच्चे हैं, और कभी कभी इस तरह की बातें कर देते हैं कि टीचर को कुछ बताया, पेरेंट को वो बात पता नहीं है या बिल्कुल ही अलग बात बताई. चलो, हो सकता है ये किसी कारणवश, बट सीरियस इश्यूज है जो हमें ध्यान देने चाहिए और हमारे अपने बच्चों को हम संभालेंगे. उसके लिए मैं आपसे बाद में बात करूँगा. तो मेरा चौथा सवाल आपसे रहेगा या जानकारी रहेगी, वो ये है सोशल मीडिया जो आजकल इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो मोबाइल्स बच्चों को इतने इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और बहुत कुछ ये सुनने को मिलता है मीडिया में कर रहे हैं. बच्चों को प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, इमोशनली दे आर बिकमिंग वीक बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द सोशल मीडिया. दे आर गेटिंग अदरवाइज ऑल्सो, उनके वो बीमार भी बच्चे हमारे किसी कारणवश हो रहे हैं. तो ये इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कि आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस है, जो चूँकि आप इतने बच्चों से मिलते हो, आप इतने पेरेंट्स से मिलते हो, तो आपको आइडिया है कि ये कैसे हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है? इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं. यस सर, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 6 months बच्चे, आजकल पेरेंट्स बच्चों को एक तरफ जगह बिठाने के लिए या खाना खिलाने के लिए, अपना काम कन्वीनियंटली करने के लिए बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं. द चाइल्ड हैज़ बीन एक्सपोज्ड फ्रॉम द एज ऑफ 6 months. छोटी उम्र में ही आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, एंड बाय द टाइम वो 3 या 4 साल तक आता है तब तक तो वो मोबाइल एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. अब वो हैबिट नहीं है, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू एडिक्शन. तो पेरेंट्स ये कोशिश करें कि हम जितना मिनिमम मोबाइल का एक्सपोजर दें बिलो द एज ऑफ 5, मिनिमम इन द सेंस. वो तो आप बता रही हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब और क्या इश्यूज शेयर होते हैं, क्योंकि बच्चे भी आपको डेफिनेटली ये करते होंगे कि मैडम मुझे बताइए, मैं तो इसमें फंस गया, इससे मैं कैसे निकलूं या मैं कैसे इससे कम करूं. ऐसे बच्चे भी आते हैं आपके पास? आते हैं क्या? देयर आर सर्टेन गेम्स. बच्चे जो हैं छोटे, मतलब 10 years above, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स. वो अगर अपना होमवर्क करने के लिए मोबाइल मांगते हैं तो उसमें गेम है, इजीली डाउनलोड है, इजी एक्सेस है, तो वो गेम खेलते हैं. एक बार पहली बार 10 मिनट के लिए खेलते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के लिए खेलते हैं, एंड देन दे. नहीं, मेरा सवाल सोनल मैम ये था, क्या बच्चों को ये लगता है कि ये गलत हो रहा है, मैं तो मतलब क्यों इसमें फंस रहा हूँ? तो ये बच्चों को जानकारी है इस बात की? मैनी ऑफ देम रियली फील लाइक दैट व्हाट वी आर getting addicted to is not right. But they are not able to come out. वो कर नहीं पाते हैं, तो बच्चे ये इश्यूज लेके आते हैं कि हम तो 10 मिनट से शुरू हुए थे, पर अब मैम हम इतना ज्यादा खेल रहे हैं, हमको इतना वो मोबाइल चाहिए. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वो डोपामिन रश है, इसलिए उनको हर 5 मिनट बाद मोबाइल चाहिए. सो दे कम अप विद दिस इश्यूज एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट. आपको कभी कोई इस टेक्नोलॉजी से संबंधित या
इंटरनेट से संबंधित कोई किस तरह का कोई बच्चों ने कोई शेयर किया हो Yes, sir. या पेरेंट्स ने भी शेयर किया हो? मैं तुम्हें Parents and children, mostly teenagers, there are few apps on which you can meet random people. So children meet random people because sometimes they do not get they don't get an ear at home, so they try to find a friend outside. So they meet random strangers. So सारे ऐसे they become friends. They start talking. Then parents find out. फिर they take the phone away. फिर वो बच्चे में जब इमोशंस आते हैं दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट इट. पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता. फिर बिकॉज ऑफ दैट चिल्ड्रन गेट डिटैच्ड एंड दे डोंट टॉक टू द पेरेंट्स. दे थिंक द पेरेंट्स ने दे आर द वर्स्ट. हमारा फ़ोन ले लिया, अब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, क्या करूँ. एंड देन इट कम्स आउट इन एंगर, अग्रेशन. So they break things, they don't know how to communicate, they are not taught like that. So issues like this. Then there's an app called Snapchat. उस पे they send snaps, तो उस पे एक streak बनती है. So they send pictures every day. Now children have streak of I think 700, 1200, 1500 days. Oh, yes. this is too much, and have to send they a feel snap. happy doing this. हाँ, and they are terrified कि हमारी streak टूट जाएगी. In exams they don't want to keep the phone away because streak टूट जाएगी. They have to send it every day. When they are not getting to send snaps or they are doing something nice, they want to send snap. क्योंकि फोमो हो जाएगा, मिस हो जाएगा, भेजना है टू शो द पीपल. क्योंकि पीयर इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा है. दे हैव टू लिव अ लाइफ जहाँ पे उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी हो. एस्थेटिक इज द वर्ड फॉर दीज किड्स नाउ. तो उनको एस्थेटिक बनाना तो है. ये ममांशा मैडम, आपने तो मुझे बड़ी डरावनी सी पिक्चर मेरे सामने रख दी. मैं तो इतना ज़्यादा दो आई वाज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द चिल्ड्रन आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दीज सोशल मीडिया साइट्स एंड ऑल्सो दिस इंटरनेट सो इजीली अवेलेबल टू देम. तो इस पर मैं थोड़ा सा और बात करूंगा इस टॉपिक पे, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स की भी एक चिंता का विषय है और हम सब की चिंता का विषय है कि हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचाएं, बावजूद इसके कि उनको ये इस्तेमाल करना है. बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी देयर, इट विल स्टे देयर एंड दिस इज हेल्पिंग अस. ऐसा नहीं है इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है. तो हम अपने बच्चों को कैसे इस बात के लिए एजुकेट करें कि भाई वो इसको सही इस्तेमाल करें और थोड़ा दूसरे इस्तेमालों से इसका करें. तो बिफोर आई कम टू दैट इशू विच आई विल टेक अप नाउ एट द एंड, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू that what advice will you give to the parents and teachers that they don't feel so down, so frustrated and so much stressed because of certain behaviors of the children, and how would you really advise them to work with the children for their benefit, for the benefit of the kids, so that their behavioral changes which are taking place, some are natural and which will happen, I mean nobody can stop them, but others which are harming them. So firstly the parents should be active listeners. Active listening मतलब जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, it is very normal that everybody is busy, सबके पास बहुत ज़्यादा काम है, तो spend quality time. Quality time मतलब being mentally and physically present with the child. अगर आप 40 मिनट्स 25 मिनट्स भी अपने बच्चे के साथ हो तो काइंडली यू कीप योर मोबाइल अवे, यू टॉक टू द चाइल्ड. आप उनकी बात उतने ही ध्यान से सुने जितना आप अपनी कलीग की बात सुनते हैं. ये कुछ बीच में आपको काट रहा हूँ, कुछ इस तरह की बात हो गई कि हम पिछले 7-8 मिनट से बात कर रहे हैं and we are so much concerned about the children's behavior and children's health and happiness and growth at later stage. तो हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है, हमें नहीं उससे मतलब है. सो दिस इज क्वालिटी टाइम. सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू द चिल्ड्रन, यू आर विद द चिल्ड्रन. You are not worried about, even at the back of your mind, there should not be anything playing and disturbing you while you. This is, yes. I think. And children model behavior. अगर आप उनके साथ ऐसे रहेंगे तो वो 100% आपकी बात सुनेंगे, because they were heard. उनकी बात सुनी गई थी तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं. नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू लिसन. बिल्कुल. एंड सेकेंडली सर कि यू शुड वैलिडेट देयर फीलिंग्स. वैलिडेट देयर फीलिंग्स मतलब कि जब बच्चा हमको कहता है कि मैं परेशान हूँ या मुझे ये करना नहीं है, तो उनको ये बोलो कि येस आई अंडरस्टैंड कि आप अपसेट हो. येस आई अंडरस्टैंड अगर आप ये टर्मिनोलॉजी बच्चे के साथ यूज करोगे कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तो शायद बच्चा आपसे वो समझेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट वैलिडेशन वो कहीं बाहर से नहीं लेगा, बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि
हाँ मैं वो वैलिडेशन मुझे घर से मिल रहा है कि हाँ मम्मी मेरी बात आज समझ गई, नेक्स्ट टाइम। ये तो टीचर्स पे भी लागू होता है, ये टीचर्स को भी ये बात माननी पड़ेगी कि जब बच्चा कुछ कह रहा है तो उस पर एक बार विश्वास करें। और ऐसा नहीं है कि एकदम से हर बच्चा मतलब हर वक्त झूठ बोल रहा होगा या हर वक्त आपको वो बात बता रहा होगा जो कि सच नहीं है। तो ये टीचर्स पे भी उतना ही लागू होता है। तो आई डोंट नीड टू आस्क फॉर टीचर्स सेपरेटली। यस सर, इफ द चाइल्ड इज बीइंग वैलिडेटेड, उसके इमोशंस को या फीलिंग्स को हम वैलिडेट करेंगे तो बहुत सारे जो बिहेवियरल इश्यूज जो बच्चे में आ रहे हैं वो आने टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों के लिए कम हो जाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि behavior should be out of love and respect, behavior should not be out of fear. So that behavior will go for a long time. Very true. कि बच्चा अगर डर के आपकी बात मानता है, सिर्फ डर की वजह से मानता है, थोड़ा मतलब है तो मुझे उसमें एतराज़ नहीं, बट सिर्फ डर की वजह से अगर आपकी बात मानता है तो उस बात को मनवाने का मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। बट इफ द चाइल्ड रियली लिसन्स टू यू एंड चाइल्ड हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग फॉर यू कि जो मुझे टीचर या मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं तो उसमें उस बात को मुझे मानना चाहिए क्योंकि वो सही बात मुझे बता रहे हैं, तो उस वक्त फिर वो बात लंबे चलेगी, वो लंबे समय तक उस बात पर ध्यान रखेगा। आप बताएं मीमांशा जी, आपको कैसा लगता है, क्या मतलब? सबसे इम्पोर्टेंट इज ओपन कम्युनिकेशन टू इवन बाय द टीचर्स एंड पेरेंट्स टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद अ सेफ स्पेस कि मम्मा मेरे से आज ये गलती हो गई, आज मैंने ये कर दिया। अ चाइल्ड विल नेवर कम अप टू यू विद द रियल प्रॉब्लम एट फर्स्ट। वो आपको एक छोटी सी चीज़ बोलेंगे, बताएंगे, दे विल सी हाउ यू आर रिएक्टिंग टू इट। अगर आप उसको सेफ स्पेस देते हो, वो नॉन जजमेंटल जोन देते हो, तो उसके बाद में दे विल कम विद द रियल प्रॉब्लम कि अच्छा ये हो गया, ये ऐसे हो गया। तो allowing the child to be the child, problem is the problem, the child is not the problem। तो कभी कभी ये मिक्स हो जाता है, तो उससे वो बच्चा अपनी सेल्फ एस्टीम पे ले लेता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। अगर किसी को एग्जाम के लिए डर लग रहा है तो वो बच्चे का डर क्यों है, क्या है, उसका रीज़न क्या है। आप बच्चे को डांट नहीं सकते हो कि तू डर क्यों रहा है, वो तो और डरेगा, बस वो आपको बताएगा नहीं। तो एक ओपन कम्युनिकेशन जहाँ पे नॉन जजमेंटल जोन हो, जहाँ पे बच्चा सेफ फील करे, दे आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, और उसके बाद में दे आर हेल्प कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जब आप बात कर रही थी मेरे बीच में थोड़ा सा, सॉरी, मेरे को दिमाग में वो बात बैठ गई कि ओपन कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट। सी हम लोग कई बार एडल्ट्स, चाहे हम टीचर्स हों चाहे हम पेरेंट्स हों, कभी कभार अनजाने में बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कहते तो हम बहुत हैं कि यू कैन शेयर एवरीथिंग विद मी, आई मीन यू डोंट वरी अबाउट इट। आपसे कुछ गलती हो जाए तो मेरे से आप बात कर लिया करो, मुझे बता दिया करो। और जब बच्चा हमें बताता है तो फिर हम थोड़ा नेगेटिवली बिहेव कर जाते हैं उस बच्चे के साथ। तो अगर नेगेटिवली बिहेव करेंगे तो बच्चा दोबारा हमें नहीं बताएगा। तो अगर बच्चे ने कोई गलती की है और वो हमें आकर के हमसे शेयर करता है उस गलती की, मेरे से ये गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई, तो हमें बच्चे को ये कहना चाहिए ठीक है हो गई, अब आगे से कोशिश करो कि ये दोबारा ना हो। अगर हम ये बात बच्चे की मान लेंगे, अगर उस पर हम या तो चुप हो जाएंगे, समटाइम्स पीपल डोंट से, आजकल मुझे कई बार ये भी सुनने को मिलता है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं इसको। अरे कुछ ना बोलना भी तकलीफदेह हो सकता है। बच्चा इस बात को ऐसा ले सकता है कि मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे टीचर को ये बात बुरी लगी, अच्छा नहीं लगा उनको। सो आप कहिए कि बेटा हाँ, आप बात करिए उनसे कि आपको आपने ये गलती की, आपको एहसास है, दिस इज गुड एनफ फॉर मी एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल नॉट डू इट अगेन, सो आई एम देयर विथ यू। तो ये कह करके बच्चों को कहेंगे तो फिर बच्चा, क्योंकि गलतियां तो होंगी, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे बड़ों से भी गलतियां होती हैं। कोई ये कहते हैं कि मैं तो गलती करूंगा ही नहीं, ये तो हाँ जानबूझ के नहीं करूंगा फॉर श्योर, बट मेरे से गलतियां होंगी। सो अगर गलती से फिर हो जाती है तो इट विल बी ओके। सो दैट इज द वे वी शुड प्रोबेबली ट्रीट द चिल्ड्रन। ओके, चलो ये तो बात आप लोगों ने कुछ, बिकॉज एक एपिसोड में सारी बातें नहीं हो सकती, बट जो मेजर इशू मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, और उसके लिए डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार से ये बात कर सकते हैं कि जो ये मोबाइल एडिक्शन, जो सोशल मीडिया एडिक्शन, और जो बच्चों का समय इसमें ख़राब हो रहा है। मैं तो देखता हूँ कि कई बार बच्चे खाना, ये नहीं कि माँ सिर्फ खाना ही आजकल बच्चों को मोबाइल पे वीडियो लगा के खिलाती हैं। आजकल तो ये भी होने लगा, मेरे पास मोबाइल साथ में रखा हुआ है तो ही मैं पढ़ पा रहा हूँ, और बीच में टट होती है जब भी वो नोटिफिकेशन आता है, और मेरा टाइम उसमें वेस्ट होता है और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फिर मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता, या मैं जो सीखना चाहता था वो नहीं सीख पाता, और बच्चों को बुरा लगता है, बट वो उससे दूर रहना चाहते हैं, नहीं रह पाते। तो जब ऐसे में बच्चे को हमारी क्या सलाह होनी चाहिए, पेरेंट्स कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं,
टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? मतलब सोशल मीडिया खाली ये कह देने का है बच्चे आजकल तो दे हैव बिकम एडिक्टेड टू, आई मीन दिस स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. So what would be your advice to the children and what would be your advice to the teachers and parents so that they can help children to come out of this problem? Sir, this is exactly true. Now the children are coming to know that they are getting addicted. आज बच्चा ही 10 years above 12 years above जो बच्चा है उसको खुद पता चल गया कि ये आदत लग गई, अब ये छूट नहीं रही है. So we have to explain them कि जब आदत लग जाती है तो what is happening? There is a dopamine rush कि वो एक नोटिफिकेशन आया और ये डोपामिन की बात जो कर रही हैं सोनल मैडम, मेरे ख्याल से ये वो है जो हमें खुशी देता है, कोई चीज इस तरह का एक है. हाँ, तो ये हैप्पी हार्मोन जो आता है वो हमारे ब्रेन में खूब हमारे साथ खेल करता है और यही है जो हमें कई बार मिठाई खाने के लिए भी प्रेरित करता है या किसी तरह की चीजें. तो वो आपका मतलब है शायद जी. तो ये थोड़ी सी मात्रा में ही अवेलेबल होना चाहिए ब्रेन में थोड़ा, पर मोबाइल ये है जो उसको कॉन्स्टेंटली दे रहा है. तो इतना हम बच्चों को ये समझाया जाए कि इतना डोपामिन आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है. तो हम उनको बहुत साइंटिफिकली नहीं, पर जैसे आपने कहा कि ये हैप्पी हार्मोन है, छोटा सा हम बता देंगे जो खुशी मिठाई खाने से होती है वही मोबाइल देखने से होती है. तो मिठाई तो हम एक ही बार खाते हैं, दिन में 2 बार खाते हैं. तो उसी तरह मोबाइल का यूजेज भी हम बच्चों को रिलेट करके बता सकते हैं कि अगर जब गोलगप्पे खाने हैं तो कितने कम खाते हैं. यू कैन नॉट हैव इट फॉर द एंटायर डे. यस, बिल्कुल ठीक आपने कहा. तो वीकेंड्स पर जाते हैं हम, आउटिंग पर वीकेंड्स पर जाते हैं जिससे मजा आता है. हम मूवी देखने कभी कभी जाते हैं. तो उसी तरह मोबाइल का यूजेस हम उनको बच्चों को ऐसे करके समझाएंगे तो दैट विल बी अ डिजिटल लिटरेसी. मतलब उनको हम लिटरेट कर रहे हैं कि मोबाइल की वजह से हो क्या रहा है. लेकिन इसमें मुझे ये भी एक बात लगती है सोनल मैडम, पता नहीं आप मेरे से इसमें एग्री करेंगे और पेरेंट्स को और टीचर्स को कैसा लगेगा. भाई उनको ये समझाने से पहले खुद भी समझ लें इस बात को कि ये डोपामिन जो हमें मिल रहा है हम भी इससे थोड़ा दूर हो जाएं. कभी मतलब दिन में 2 बार देख लें, 1 बार देख लें, 3 बार देख लें, जब तक कि हमें अपने ऑफिस में या बिजनेस में या कहीं पर ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तब तक को छोड़ करके बाकी हमें भी, चूंकि हम अगर ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारे, एंड आई टेल यू पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई मीन देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम चिल्ड्रन. मैंने बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखी और चूंकि जब मुझे लगा कि अगर मुझे इनको ये करते हुए रोकना है तो पहले मुझे रुकना पड़ेगा. और उस वजह से मैं भी जो कुछ चीज़ों में ऐसा लगता था कि ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं अपने आप को बचा पाया. आप क्या सलाह देना चाहेंगे? First of all, I want to make a point that children are not addicted to phones. They just have things which they can procrastinate. Because they can stay in school without phone for 7-8 hours and they have an environment which is engaging for them. तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता नहीं कि फ़ोन होता. घर पे there is no things which are engaging and they can procrastinate. होमवर्क करना है, प्रोक्रेस्टिनेट, बाद में करूँगा, सारी चीज़ें बाद में. प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है इनका कहने का कि भाई वो उसको डिले कर दो, बाद में कर लेंगे, उस तरह की चीज़ से मतलब है कि अभी नहीं मुझे होमवर्क करूँ, पहले मैं ये देख लूँ, फेसबुक देख लूँ या इंस्टाग्राम देख लूँ, उसके बाद मैं ये करूँगा. तो जी, तो वी शुड हैव अ टाइम टेबल और अ रूटीन फॉर चिल्ड्रन जो कि उनके लिए एंगेजिंग हो, क्योंकि एट दिस एज देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द चिल्ड्रन एंड व्हेन दैट एनर्जी इज नॉट चैनलाइज समवेयर व्हिच इज गुड फॉर देम तो दे यूज़ फ़ोन, क्योंकि उनके पास में टाइम, दे आर वेरी बिजी, उनका स्केड्यूल ऐसा होता है. पर वो सारी चीज़ें एट द एंड करते हैं, फिर वो रात तक जगते हैं, फिर स्कूल में भी आके वो सोते हैं, फिर वो एक लूप भी बन जाता है. दे कीप टॉकिंग ऑन फोन्स और दे कीप यूजिंग फ़ोन. पेरेंट्स अपना घर का वाईफाई बंद कर सकते हैं रात को, उनको बिना सिम का फ़ोन दे, वाईफाई के साथ में दे कैन यूज इफ दे वांट सम एक्सेस. यूट्यूब चलता है वाईफाई के साथ, सो रात को दे कैन टेक द फोन ऑल्सो. चिल्ड्रन, in speaking about children, we can explain them how social media affects their behavior, their mood, their mind. For example, अगर कोई भी एक चीज़ होती है, सोशल मीडिया उसको बहुत एग्जैजरेट कर देता है, बड़ा कर देता है. इफ़ आई एम सेइंग आई एम सैड, तो सोशल मीडिया के जो पोस्ट्स हैं या जो उसका एल्गोरिदम है, इट विल बी लाइक कि वो मुझे दैट विल ओनली शो पोस्ट विच आर सैड. तो एक पूरा लूप चलता है, बच्चे फिर वो सैड रील स्क्रॉल करते रहते, फिर उनको लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ. दे कम टू मी विथ मैनी डिसऑर्डर्स के मैम मुझको ये है क्या. लेकिन उसको मैं रोकूं कैसे? ये तो प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई. बच्चों को ये प्रॉब्लम पता ही नहीं है ना. वी हैव टू मेक देम अवेयर कि ये बिहेवियर इस वजह से हो रहा है. तो ये इस तरह से अगर पेरेंट्स थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे की जिंदगी में हर क्षण झांकना है, बट कंप्लीटली छोड़ भी नहीं देना. मतलब तो जो टेक्नोलॉजी वाला यूज है, मेरी तो सलाह सभी पेरेंट्स को यही रहेगी कि ये मान के चलें कि ये इम्पोर्टेंट है,
जरूरी है और इसके बिना लाइफ ऐसा नहीं है, जिंदा नहीं रह सकते, बट जो प्रोग्रेस जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है हमें इसकी ज़रूरत है। तो एक तो पहला तो यही मान के चल लें, और बच्चे को अगर मोबाइल दिलाना भी पड़ा है तो एक बेसिक मोबाइल देना है। और जो आप दोनों ने कुछ बातें हमें बिहेवियर के बारे में बताई है, ये बच्चों का बिहेवियर एकदम से नहीं चेंज होता, ये तो स्लो चेंजेस होते हैं। ये नहीं कि आज बच्चा गुस्सा करना शुरू कर देगा या आज बच्चा दूसरी तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें जितना बच्चे के साथ ध्यान रखेंगे, जितना हम उसकी देखभाल ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा कंसर्न होंगे, तो हम उसको बीमारी बनने से पहले उसको हम ठीक से संभाल सकते हैं। और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारे एज टीचर्स और एज पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं बार बार कहता रहूँगा इस बात को। और मैं भी कभी कभी मेरे दिमाग में आती है कि हम अपने टीचर्स के सामने नहीं बिल्कुल बोल पाए, हमें बड़ा डर लगता था, या अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोल पाए, बड़ा डर लगता था। पर ये कोई बहुत अच्छी बात तो थी नहीं। अगर आज हमारे बच्चे हमारे सामने बोल पाते हैं और हमसे अपनी बात कह पाते हैं, अपने विचार, whatever they think, if they are able to speak to us, at least we know what they are thinking. अगर वो नहीं बोलेंगे, हम उनको नहीं बोलने देंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे बच्चे क्या बोल रहे। तो अगर वो बोलते हैं आपके सामने, तो इसको इनडिसिप्लिन ना माने, इसको डिसओबीडियंस ना माने, बच्चों को बोलने दें। हाँ, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। बच्चे बड़े होंगे, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हमें उनके स्पेस से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाना पड़ेगा, सो दैट दे आर एबल टू लिव देयर लाइफ द वे दे वांट। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। मैं तो खासकर जितने बच्चों से मिला हूँ या जितने बच्चों के साथ रहता हूँ, बहुत समझदार बच्चे हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं। बट कुछ सिचुएशंस कभी ऐसी हो जाती होंगी, कुछ चाहे स्कूल में हो, घर में हो, बाहर सोसाइटी में हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए वो बच्चे जिम्मेवार नहीं। बट वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम लोग जिम्मेवार हैं अपने बच्चे को इस सिचुएशन में ना जाने देने के लिए, और अगर वो गलती से चले गए हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए। तो मैं आप दोनों को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि आपने समय दिया और हमारे पेरेंट्स से और टीचर्स से अपने बातें शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे फ़ायदा होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।